پشاور کے یونیورسٹی روڈ پر CTT تھانے میں دھماکہ، ایک اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ CCPO پشاور میاں سعید نے کہا کہ دھماکہ تھانے میں موجود بارودی مواد پھٹنے سے ہوا، حملے کے کوئی شواہد نہیں۔ تھانے میں CTT کے 3 اہلکار تھے۔ دھماکے سے تھانے کی عمارت شدید متاثر، ایک حصہ منہدم ہو گیا، باقی بارودی مواد کو بھی آگ لگ گئی۔ تھانے میں موجود 4 ملزمان کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسے دہشت گرد حملہ نہیں کہہ سکتے، تحقیقات جاری ہیں۔ لگتا ہے کہ مال خانے میں دھماکہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو سیل کر دیا۔ صبح ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر جو سرلی ہمارا پولیس اسٹیشن ہے پورا قبرستان ایریا جنرل ایریا کینٹ کا، اس کے اندر جو ہے کوئی دھماکے کی اور فائرنگ کی آواز آئی ہے۔ موقع پہ تمام آفیسرز اور ہماری تمام ملٹری جو آفیسرز ہیں وہ سارے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور جب ہم نے اس کو ویریفائی کیا تو اندر کوٹ میں ابھی تک جو ابتدائی طور پہ لگ رہا ہے وہ یہی ہے، تو کوٹ کے اندر کوئی بارودی مواد ہے، شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس کے اندر دھماکہ ہوا، جس سے عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہوا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 10 میں خوفناک آتش زدگی، 300 جھونپڑیاں، خانہ بدوشوں کا سامان اور متعدد موٹر سائیکلیں، راکھ کا ڈھیر۔ 5 فائر فائٹرز نے 2 گھنٹے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ جھگیوں میں آگ تو بجھ گئے لیکن ہر طرف تباہی کے مناظر۔ تقریباً 500 جھگیوں میں سے 300 کے قریب جھگیاں جل گئی۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی تاریں ٹکرانے سے شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ لگی۔ ہمارا سارا سامان جل گیا، مالی امداد کی جائے۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری بھارتی پراکسیوں کی دہشت گردی سے واقف ہیں، کوئی ابہام نہیں۔ افغان طالبان کے گمراہ کن بیان پر وزیر دفاع کا شدید رد عمل۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستانی قوم سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگ ہے۔ در حقیقت افغانستان کی غیر نمائندہ حکومت دھڑے بندی کا شکار ہے۔ 4 برس گزرنے کے باوجود افغان طالبان عالمی برادری سے کیے وعدے پورے نہ کر سکے۔ استنبول مذاکرات پر افغان طالبان ترجمان کے گمراہ کن بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کی جانب سے گمراہ کن بیان پر مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے بیان جاری کر دیا۔ وزیر اطلاعات کے مطابق طالبان کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان کے موقف کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، غلط بیانی قبول نہیں۔ پاکستان کا موقف واضح طور پر موجود ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ ویری ویل پلیڈ بوائز ان گرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی ٹیم کو سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پوسٹ میں پاکستان کی شاندار بالنگ اور بیٹنگ کو سراہتے ہوئے لکھا کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو انتھک کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں تیسرے T20 میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان، قومی صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات۔ عوامی فلاح کے منصوبوں، امن و امان، روڈز کی بحالی، ستھرا پنجاب، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں جاری اصلاحات پر تفصیلی بات چیت۔ ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں 20,000 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سراہا کہ اطلاع کے قیام اور الیکٹرو بسز لانچ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی۔ 8 نومبر تک پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس اور ریلیوں پر پابندی برقرار۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال، ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ The Indian state has resorted to massive misinformation campaigns, and because they could not prove their mettle in the battlefield, and
in the diplomatic arena, and their narrative was badly defeated. Hence, they resorted to propaganda warfare, propaganda campaigns, misinformation and disinformation. As part of their disinformation, you saw that during the war, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims. भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। भारत के लिए जासूसी करने वाला एजाज मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां बरामद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत तलाश चौधरी ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। अता तारड़ ने कहा कि एक और भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। एजाज मल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी इदारे मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने झूठ का सहारा लिया। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने आ चुका। तलाश चौधरी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा का आगाज हुआ। भारत शिकस्त का बदला इस तरह लेना चाहता है। भारत जान ले, पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना है। कभी कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहां से ट्रॉफी लेकर अपनी वो खिफ़त जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का इवेंट्स जो हैं ये दोबारा से प्लान करने की लगता है कोई कोशिश हो रही है। मुबैना करप्शन के इल्जामात, NCCI के अफसरान की गिरफ्तारियां, दीगर अफसर और अमला परेशान। जरा के मुताबिक NCCI के बेशर सर्कल्स में अफसरान और मुलाजमीन खौफ का शिकार है। मुतादिद तहकीकात रुक गयी। गुज़िश्ता एक माह के दौरान कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में तफ्तीश का सिलसिला रुक चुका है। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान समेत 9 अफसरान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में मौजूद। कौन सा एक काम है जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल में कराची वालों के लिए किया हो? 15,000 बसों की जरूरत है कराची को। ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये बैनुल अक़वामी सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। 400 बसें लाकर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, या बाइक्स हैं जो 50 लाख से ज्यादा इस शहर कराची में हो चुकी हैं और इसलिए हो गई हैं कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सड़कें बनी हुई नहीं है। और ई चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये क्या ड्रामा है? पीपल्स पार्टी कोई एक काम बताए जो 15 साल में किया हो। पीपल्स पार्टी ने कराची में एक भी अच्छा काम नहीं किया। एक मर्तबा फिर नॉर्थ टाउन्स में तरक्याती कामों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने कराची की नस्लें तबाह कर दी। PP ने देहात में कब्जा किया है, अब शहर पर कब्जा जमा लिया। कराची शहर को 15,000 बसों की जरूरत है। हम अपनी बसात से ज्यादा काम कर रहे हैं और करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। इख्तियार वली ने वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ फर्ज सराय की। वज़ीर बल्दियात KP मीना खान अफरीदी ने कहा कि सुहेल आफरीदी 9 मई को पेशावर में थे। ये बदनामी के लिए साजिश है। सूबे के आला ब्यूरोक्रेट की कमेटी बनाएंगे जो KP में 9 मई की तहकीकात करेगी। हर कोशिश की गई कि सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला ना बने, लेकिन नाकामी हुई। जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला बने, मुखालिफिन के आसान खता है। जल्द काबीना का इजलास होगा। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फजा इंतहाई मुज़र सेहत। पंजाब के कई शहरात भी फजाई आलूदगी के लपेट में। लाहौर का दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। AQI 340 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 401 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 और मुल्तान में 263 तक पहुँच गया। स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तबी माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनकर यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में स्मोक करो। स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी आयद। महकमे माहौलियात पंजाब ने सरकारी और निजी स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी लगा दी। 3 नवंबर से स्कूलों के नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक
कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर ही खुलेंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख का जुर्माना होगा। सहाफियों के खिलाफ जुर्म के खात्मे का आलमी दिन। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सहाफियों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने पैगाम लिखा कि सहाफी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलमबरदार होते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली कि हक सच की आवाज उठाने वाले सहाफियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सहाफियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। अमरीकी सदर ने मजहबी कत्ल गारत रोकने के लिए नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। बोले कि महकमा जंग को नाइजीरिया में मजहबी कत्ल गारत रोकने के लिए तैयार रहने का कहा है। अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। मजहबी आजादी और शहरी हिफाजत के बगैर बैन अल-अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जा सकती। खाना जंगी के शिकार सूडान में हालात मजीद बिगड़ने लगे। सूडान में खाना जंगी से शहरियों के कत्लेआम का सिलसिला न थम सका। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक शहरियों को बड़ी तादाद में इज्तिमाई फांसियां दी जाने लगी। अल्फाश पर रैपिड सपोर्ट फोर्स के कब्जे के बाद हालात बदतर हो गए। सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान मगरबी कुर्फदान में झड़पें जारी। अब तक हजारों अफराद को इज्तिमाई तौर पर कत्ल या लापता कर दिया गया। 40,000 अफराद मारे जा चुके। गजा में इस्राएली फौज ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इस्राएली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के आगाज से अब तक 226 फलस्तीनी शहीद और 600 जख्मी हुए। गजा में मलबे से मजीद 17 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। अब तक मिलने वाली लाशों की तादाद 499 हो गई। इस्राएली हमलों से और मलबे से मजीद लाशें मिलने के बाद गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। तारकीन वतन को अमरीकी वीजा कैसे और कब मिलेगा? अमरीकी सदर ने माली साल 2026 के लिए तारकीन वतन को वीजा देने की हद मुकर्रर कर दी। आइंदा साल अमरीका आने वाले सिर्फ 7,500 तारकीन वतन वीजे के अहल होंगे। ट्रंप ने कहा कि 1980 के रेफ्यूजी एक्ट के बाद पहली बार इतनी कम तरीन हद मुकर्रर की गई। अमरीका की तारीख में तारकीन वतन की तादाद में कमी ला रहे हैं। तारकीन वतन के दाखिले से मुल्क के मफादात को नुकसान नहीं होना चाहिए। और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। बॉलीवुड किंग ने अपनी कामयाबी का सेहरा खवातीन के सर बांध दिया। अपनी कामयाबी और शोहरत का क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की खवातीन और अपनी फिल्मों की हीरोइंस को दिया। शाहरुख खान ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए फिल्मी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। किंग के बादशाह बॉलीवुड खान ने कहा कि इनकी कामयाबी इनके साथ काम करने वाली अदाकाराओं का सबसे बड़ा किरदार है।